So I'll start by explaining the difference between the list and the tuple. This is the second revision class. First one, in first one we have covered till list versus tuple, right? All right. So you can see my screen, right? So Yes. let us look at the differences. First, list is are mutable. The meaning of the mutable is the list can be modified, which basically means you can add or delete elements from the list. Okay, you can add or delete Okay, sir. more elements from the list. And when you say tuples are immutable, that means tuples are fixed in nature. Whatever elements are there in the tuple at the beginning or at the initialization of the tuple, those elements will remain like that. Tuple cannot be modified. Okay, this is Sir, can clear to I, you? uh, sir, if you are given, there is a list in which there is a tuple in which it is going orange, yellow, brown. So you cannot change it afterwards. Yes, you cannot, let's say, Yes. you cannot add two more members to it, let's say green and orange. You cannot add them in a tuple. Whereas in a So list, you can add these members. I'm going to explain it to you. I mean, we are going to discuss the operations on the list in coming sessions. So you will get more details on how to add or delete from the list. Pretty much we will be doing it in array. So numpy arrays we will be doing same operations, and very same operations can be done on the list as well. Whereas on tuple those operations cannot be done. Okay. yes. Second, let us talk about the second difference. When you iterate means when you go through the elements of the list one by one. So you pick up first element, then you go to the second element, then you go to the third element, then you go to the fourth element until you cover all of the list. This is called iteration of the list, or iterating through the elements of the list. Okay, when you do this in a list, it is time consuming. That means it takes more time because the list is dynamically allocated in the memory. The list is stored in a dynamically allocated memory, whereas tuple, since it is not modifiable, it is allocated in the memory area that is enough available to suitably accommodate a tuple. So let's say in memory there are 14 bytes remaining and your tuple needs only 12 bytes. So the tuple will be the tuple will easily fit into that memory, right? So tuple will be allocated the memory space of those 12 bytes out of 14 bytes. Okay? Whereas since list is there and list is modifiable, that means list can grow in future. And if there are 14 bytes available and list is right now only 12 bytes, then that list area may not be allocated to the list because you need a bigger area available to accommodate the list. Secondly, even if it is allocated, when the next element is added to the list, that might be allocated a memory area that is far away from the previous area. Okay, so it will not be continuous. The continuous spaces are not allocated to the list, whereas in tuple the continuous spaces are allocated, and therefore when you do the iteration over the members of a list, it is time consuming, whereas when you do iterations over the members of a tuple, it is faster. Does it make sense, Devansh? Yes, sir. Did you get Yes, it? sir. Okay. Same way, when you talk about operations on the list, so you have operations on the list because you can modify or delete elements from the list.
but tuple has no such operations available. Does it make sense? Yes, sir. Okay. And I mean, your yes is very low. So are you getting it or you are not getting it? Because anyway, I am going to take it in a separate class also, where we will look at the list and look at the tuple and see the examples. But right now, from a conceptual point of view, you must understand tuple as a list which is not modifiable. Let us put it this way. A tuple is a list which is not modifiable. Does it make sense? Yes, sir. Okay. List consume more memory and tuple consumes lesser memory. Why did we say that? Can you explain to me? I just explained memory allocation of the list and the tuple just in the previous point. Devansh? I said list can be allocated memory at several places, right? Whereas for tuple, you always allocate the memory in continuous spaces. Therefore, it will consume less memory than the list. Okay? Sorry, sir. I was disconnected. Or you were disconnected. Okay. I was saying list consume more memory and tuple consumes less memory. Why? Tell me. I just explained that to you. सर बिकॉज लिस्ट मतलब पूरा बिकॉज टपल जो होता है टेक्स एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी मतलब हाँ, टपल जो है ना मेमोरी में साथ साथ अपने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एलिमेंट। जबकि लिस्ट में एलिमेंट्स के रेफरेंसेस रहेंगे, तो एक एलिमेंट इधर स्टोर्ड है, एक एलिमेंट उधर स्टोर्ड है, दूसरा एलिमेंट उधर स्टोर्ड है, कहीं कहीं स्टोर हो सकते हैं। इसीलिए लिस्ट ज़्यादा मेमोरी लेगी। ठीक है? लिस्ट मॉडिफाई हो सकती है, और मॉडिफाई हो सकती है तो मॉडिफाई करने के लिए उसमें बिल्ट इन मेथड्स है, ऐड और डिलीट मेथड्स अवेलेबल है। टपल मॉडिफाई नहीं हो सकता, इसलिए टपल में ऐसे कोई मेथड्स नहीं है। ठीक है? और लास्ट डिफरेंस यस अपन कह सकते हैं कि क्योंकि हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए लिस्ट में हम कुछ एरर्स कर सकते हैं, और टपल मॉडिफाई हो नहीं सकता, इसलिए उसमें एरर होने के चांसेस मिनिमम है। ओके, सो दे आर मिनिमम मतलब जब हम लोग चांसेस। हाँ, tuple जब cannot be बेसिकली modified, so we cannot create errors, we cannot induce errors in the tuple. But since the list तो is मतलब modifiable, we जब हम might लोग be रन able कर to रहे induce errors. हाँ, बताओ। when we are हम लोग किसी चीज को रन कर रहे हैं तो हम्म, लिस्ट में वो एरर दिखाता है बट टपल में वो एरर नहीं दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते टाइम हाँ हम उन एलिमेंट्स में कुछ एरर इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो एक एलिमेंट दिया, उसमें हमने बीच में कॉमा लगा दिया। अब कॉमा से क्या सही होता है, एलिमेंट सेपरेट भी होते हैं, और एलिमेंट के अंदर ही आपने कॉमा लगा दिया तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि एलिमेंट सेपरेटर है या एलिमेंट है, खुद ही ये एलिमेंट है ना? ओके आप बट एक टपल में रॉन्ग ऐसा नहीं डेटा है। टाइप यूज कर सकते हो, टपल तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो जो एरर आनी होगी वो शुरू में ही आ जाएगी। जबकि लिस्ट में प्रोग्राम रन होते टाइम में आप उसमें एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो, है ना? तो एरर प्रोग्राम के रन होने के टाइम आएगी। लेकिन टपल में कंपाइलेशन एरर ही आ जाएगी, इंटरप्रिटेशन एरर ही आ जाएगी, आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा अगर टपल में पहले से एरर है। तो आप पहले से ही एरर को करेक्ट कर दोगे। एक अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपन ने एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पे हम यूज़र से अलग अलग नंबर्स इनपुट ले रहे हैं, और जो जो नंबर यूज़र इनपुट में दे रहा है वो सब नंबर्स हम लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है देवांश? यस सर अपन एक प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे हम लगातार यूज़र से नंबर्स मांगेंगे, लेट से 10 नंबर मांगेंगे, और उन 10 नंबर से एक लिस्ट बनाएंगे। ओके,
जब हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे Yes. तो यूज़र इसमें नंबर्स डालेगा। अब मान लो यूज़र ने नंबर की जगह कैरेक्टर्स डाल दिए, तो क्या होगा? वो गलत बता देगा। रन टाइम पे आपको एरर दे देगा, करेक्ट? जबकि टपल के अंदर आप कोई चेंजेस कर Yes, ही sir. नहीं सकते हो, तो ऐसी कोई एरर आएगी ही नहीं। छोटी सी बात है, Okay. ठीक है? Okay. Alright, so this is the difference between list and tuple. Shall we go ahead? Yes, sir. Alright, so let us talk about condition checking in Python. Do you remember that we can check conditions in Python using if? And we have studied Yes, four sir. forms of if. We have studied if else, if elif, and single line if. Do you remember that? Yes, sir. So the syntax of if is very simple. With if you will give a condition, and if you have to check another condition, if this one does not satisfied, is not satisfied, then you can use elif and give another condition, and finally if none of the condition is satisfied, then finally you can use else, and therefore this is called if else syntax. है ना? ये तो क्लियर है? Yes, sir. इफ एल्स तो याद है, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं अपन यहाँ पर। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी ग्रेटर देन ए नहीं है तो चेक कर लो बी ए के बराबर है क्या, और अगर बी ए के बराबर भी नहीं है तो प्रिंट कर दो कि ए ही बी से बड़ा है, करेक्ट? Yes, sir. तो ए और बी के बीच में हम देख रहे हैं बड़ा है या बराबर है, या बड़ा है तो कौन सा बड़ा है, इसका प्रोग्राम है ये, ठीक है? ये वाला इफ का सिंटेक्स आप एक्सप्लेन करोगे? एक्सप्लेन मी द सिंटेक्स ऑफ इफ। ये इफ का दूसरा फॉर्म है जिसको शॉर्ट हैंड इफ नोटेशन कहते हैं, है ना? इफ एल्स का शॉर्ट हैंड नोटेशन है। एक्सप्लेन करो जल्दी से। फर्स्ट इफ के बाद कंडीशन देंगे, कंडीशन कोलन लगा के जो हमको लिखना है, जो स्टेटमेंट लिखना है, यानी लेट्स स्टेटमेंट से प्रिंट देना है, प्रिंट देना है तो प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। देखो एग्जांपल में इधर दिया हुआ है, यस यू कैन सी हियर, दिस इज द एग्जांपल। सेकंड वाला सिंटैक्स एक्सप्लेन करो। इसमें भी इसमें एल्स वाला है, मतलब अगर वो कंडीशन नहीं है तो एल्स करके। नहीं, इस सिंटैक्स को दोबारा ढंग से देखो। इसमें पहले जो आपको करना है वो लिखते हो, फिर इफ लिखते हो, फिर कंडीशन देते हो, और एल्स में जो आपको एल्स में करना है। समझ आता है क्या? यस ये रिवीजन है, अपन कर चुके हैं, ये याद है नहीं है? यस सर, याद है। ओके गुड। तो अगर अपन इस एग्जांपल को ले लें तो अपन कह रहे हैं प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट ए कर दो, और अगर बी से बड़ा नहीं है तो प्रिंट बी कर दो। और ये इसको सिंगल लाइन इफ कह सकते हैं या शॉर्ट एंड इफ कह सकते हैं, ठीक है? यस सर। आगे चलेंगे। ऑलराइट, अब वाइल लूप्स की बात करते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट बार बार करना है तो पाइथन के अंदर दो तरीके के लूप है। कौन कौन से बताओ? इफ एंड वाइल, नहीं इफ तो नहीं, वाइल। इफ कंडीशन चेकिंग के लिए होता है, यस सर। वाइल एंड फॉर। सर डीई, वाइल एंड फॉर सर दो डीई लूप्स आप क्या होता है? क्या चीज़? डीईएफ को क्या कहेंगे? जो डिफाइन वाला था, डिफाइन फंक्शन। वो तो फंक्शन डिफाइन करना था, आएगा, वो भी आएगा आज के रिवीजन में, वो भी आएगा, ठीक है? ये है लूप्स। लूप का मतलब ही सीधा सा है, लूप का मतलब होता है कोई चीज़ को बार बार करना। आपने ऐसे सर्कुलर देखे, हुला हुप करके कहते हैं, लोग अपनी कमर पे घुमाते हैं गोल गोल, रिंग्स देखिए, है ना? तो उसी ढंग से दैट इज अ लूप, बार बार
कोई चीज़ को करना। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वाइल के साथ में कंडीशन देते हैं और उसके साथ में आपको जितना भी काम करना है वो आप कोलन लगा के थोड़ा इंडेंट करके स्टेटमेंट्स दे देते हैं। ओके, सो सिंटैक्स ऑफ वाइल इज वाइल एंड व्हेन द कंडीशन अंटिल द कंडीशन इज ट्रू डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे प्रिंट आई और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन बार बार होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, यस सर। ये प्रोग्राम बताओ तो मेरे को, व्हाट डज दिस प्रोग्राम डू? कौन सा है? स्क्रीन नहीं देख रहे हो? ये स्क्रीन बोल रहा है सर। आई इज इक्वल्स टू 1 ले लिया टू रन द लूप, हम्म, मतलब ना। फिर while में if we have written that 6 should be greater than I is less than 6, हम्म, so it will run until I is equals to 6. गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमने अपने आप को करेक्ट जो किया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें यही बोला था कि यू मस्ट रीड दिस स्टेटमेंट एज आई इज लेस देन इक्वल टू 6, नॉट 6 इज ग्रेटर देन आई। बोथ आर करेक्ट बट द गुड वे ऑफ रीडिंग इट इज आई इज लेस देन 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट किया, बताया भी सही है। तो क्या प्रिंट होगा जल्दी बताओ, So print स्क्रीन पे 6 क्या होगा। प्रिंट होगा? जो भी नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 स्क्रीन पे कितना प्रिंट होगा, कितने नंबर्स प्रिंट 6 होंगे? चलो बताओ। 6 होंगे। नहीं होंगे, ढंग नहीं, से I देखो। equals to 1 है, I equals to 1 है, 5 होगा। कौन कौन से नंबर प्रिंट होंगे बताओ? 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। दैट इज ए रॉन्ग आंसर। करेक्ट करो अपना आंसर जल्दी से। 1 2 2 3 4 5, करेक्ट, क्योंकि there is no वेरी equals to गुड sign. निवास। तो 6 जैसे ही हो जाएगा 6 लेस देन 6 नो, तो बाहर आ जाएगा। लेकिन 5 लेस देन 6 तक ये लूप चलेगा और जब जब भी ये लूप चलेगा तो प्रिंट आई होता रहेगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स प्रिंट होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है क्या? Yes. ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट अपना था फॉर लूप। तो फॉर लूप की हम बात करते हैं। फॉर लूप किस काम में आता है? फॉर लूप जब भी हमें कोई सीक्वेंस दे रखी होती है, सीक्वेंस क्या क्या हो सकती है, या तो लिस्ट हो सकती है, या टपल हो सकता है, या डिक्शनरी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकता है, या सेट हो सकता है। इनमें से कोई भी एलिमेंट है, उसके सारे ऑब्जेक्ट जब आपको इटरेट करने हैं, आपको उस सारे ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके जाना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो फॉर लूप। ओके, फॉर का सिंटैक्स होता है फॉर वेरिएबल नेम इन और आपका सीक्वेंस वेरिएबल। फॉर का सिंटैक्स लिखा हुआ है आपके पास नोट्स में। Yes, sir. फॉर वेरिएबल नेम इन और सीक्वेंस वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नाम का एक सीक्वेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट्स की डेटा टाइप क्या है जल्दी बताओ? ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल क्या है? String. ढंग से सामने नहीं दिख रहा ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल क्या है? ऑब्जेक्ट्स में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट्स में क्या डाला हुआ है? So box pencil is हाँ, तो क्या है ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल क्या है? stationery. अरे, ये इतने सारे ये दिखे थे। ये सब क्या थे? Actually 1 0 करके। ये सब क्या थे? व्हाट आर ऑल ऑफ दीज? So list है। लिस्ट है। तो ये भी क्या है? String list. स्ट्रिंग लिस्ट। वेरी गुड।
इट इज द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। सर तो जब भी पूछोगे पूरा बोलना पड़ेगा। और क्या, इट इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लिस्ट की बात ही सीधे से हमें, जब भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लग जाए और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद में हमारे पास में एलिमेंट्स आ गए तो दैट इज अ लिस्ट। ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। सर जो भी मतलब फॉर बॉक्स इन ऑब्जेक्ट्स तो प्रिंट बॉक्स हो जाएगा। हाँ तो बताओ टोटल आउटपुट क्या होगा। बाकी आवाज़ कटती है, एक सेकंड में वापस में। हाँ, इसका आउटपुट क्या होगा। तो बॉक्स प्रिंट कर देगा। बॉक्स प्रिंट कर देगा। ढंग से देखो, ढंग से देख के बताओ क्या प्रिंट होगा। सर प्रिंट क्या करवाना है, बॉक्स ही प्रिंट करवाना है। आप देखो ना, प्रोग्राम तो कोड तो सामने लिखा हुआ है। अब आप बताओ क्या प्रिंट होगा। इस कोड का आउटपुट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये कोड जब मैं रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या होगा। सर एक्स निकल जाएगा जो भी एक्स है। प्रिंट हो जाएगा। ओके, भूल गए हो देवांश, क्या चक्कर है। देखो ये जो एक्स है इसमें फर्स्ट टाइम वैल्यू आएगी बॉक्स, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, बॉक्स। ठीक है, अब यस अब ये नेक्स्ट फॉर लूप का नेक्स्ट इटरेशन चालू होगा तो ये चेक करेगा ऑब्जेक्ट्स नाम के वेरिएबल में अभी और बचे हैं क्या आइटम्स। आंसर आएगा यस और बचे हैं, तो बोलेगा ठीक है नेक्स्ट वाला ले लो। तो नेक्स्ट क्या आएगा एक्स में, पेंसिल। ओके, और यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, पेंसिल। सर फिर मैंने भी तो बोला था कि प्रिंट आउटपुट जो निकलेगा दैट विल बी जो भी आप एक्स की जगह पे दो। नहीं, तुमने बोला था बॉक्स आउटपुट होगा, लेकिन इसका आउटपुट होगा बॉक्स पेंसिल इरेजर। बॉक्स पेंसिल इरेजर, ये आउटपुट होगा इसका। अच्छा मान लो यहाँ पे मैं एक और लगा दूँ, एक और स्ट्रिंग लगा दूँ तो आप बता सकते हो क्या आउटपुट होगा। सर हेलो भी कर देगा। हेलो भी प्रिंट कर देगा, राइट। तो फॉर लूप आपके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके इटरेट करता है। जितने भी एलिमेंट्स आपने दिए उन सब एलिमेंट्स को इटरेट करेगा और उन सब पे वो ऑपरेशन कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है क्या। यस सर। क्या समझ में आया, कुछ पूछ लूँ। सर एक बार मुझे वो इंटीग्रेशन वाली चीज़ वापस बता दें। इटरेशन, इटरेशन का मतलब है एक एक करके सब एलिमेंट्स के पास में जाना, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को लूप करना। पहले फर्स्ट एलिमेंट उठा लो, फिर सेकंड एलिमेंट उठा लो, फिर थर्ड एलिमेंट उठा लो, फिर फोर्थ एलिमेंट उठा लो। सर तो वो प्रिंट भी ऐसे ही करेगा। ये मतलब जैसे कि आपने मुझे दिखाया 1 2 3 4 तो इट विल एक साथ ही प्रिंट करेगा तो पहले 1 करेगा पहले वन फिर करेगा, फिर अगले लूप में 2 करेगा, अगले लूप में 3 करेगा, अगले लूप में 4 करेगा। ओके सर। बताओ इस कोड का आउटपुट बताओ, अगर ओके है तो व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस कोड। सर ये तो थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। क्या गड़बड़ है बताओ, गड़बड़ है तो गड़बड़ भी सम बताओ। सर सम प्लस इक्वल्स टू इंडेक्स कैसे होगा, उसका आप तो ये बताओ, मतलब है
ओ, तब प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। प्लस का मतलब ही नहीं हुआ। ओके, सम का तो कोई हुआ ही नहीं कुछ भी सम। अच्छा देख के हाँ। बताओ। तो सर पहले ये वन प्रिंट करेगा, फिर थ्री, फिर सिक्स, फिर 10। ढंग से देख लेना। दिस इज अ रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर दो मुझे। It will not print 1, 2, 3 and 10. No, it will not print that. ढंग से देखो। अच्छा, फॉर लूप के अंदर कितने स्टेटमेंट है? दो। एक दो है, दिख एक रहे है, हैं? एक है सम प्लस इक्वल्स। एक ही स्टेटमेंट है। फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। तो सर राइट, ऐसे वन प्रिंट करेगा तुम बताओ कितना प्रिंट करेगा। अच्छा, पहले लूप, क्योंकि सर पहले फॉर लूप में एक्स कितना है बताओ। वन। पहले फॉर लूप में एक्स वन है, इतनी बात समझ में आती है। तो सम क्या हो गया पहले फॉर लूप में? वन। सम इज इक्वल टू सम प्लस वन, यानी जीरो प्लस वन, वन। तो पहले फॉर लूप में सम में वैल्यू हो गई वन। अभी कुछ प्रिंट हुआ क्या? हाँ सर वन प्रिंट हो जाएगा। नहीं हुआ। प्रिंट तो फॉर के बाहर है, अच्छा हाँ। दिख रहा है? यस सर। प्रिंट फॉर के बाहर है, तो कुछ प्रिंट हुआ क्या? नो। नहीं। सेकंड टाइम, सेकंड टाइम फॉर में क्या है? तो सेकंड सर तो टाइम एक्स में क्या किसी में है? कुछ नहीं होगा। हम्म? तो इसमें कुछ किसी में कुछ नहीं होगा तो प्रिंट ही बाहर होता अभी देखते हैं। सेकंड टाइम एक्स में क्या है? है। सेकंड टाइम एक्स में क्या है? टू। टू। तो टू। अब सम कितना हो गया? बाकी आवाज बहुत करती है। आवाज अभी भी कट रही है? अच्छा, स्ट्रेंज है। और सर अभी बीच में पता नहीं पड़ गया। अच्छा, आज शायद इंटरनेट आपका अच्छा नहीं चल रहा है। सम बताओ, सम कितना होगा जल्दी जल्दी, तो इटरेशन बता दो मुझे। पहले सम में वैल्यू थी तो वन, सम अब कितनी हो जाएगी? टू। नहीं, अब थ्री हो जाएगी। वन प्लस टू कितना होता है? सर मुझे लगा आप एक्स में पूछ रहे हो, वो तो थ्री होगी। हाँ, थ्री होगी। थर्ड इटरेशन में एक्स मुझे में क्या लगा वैल्यू होगी? सिक्स। एक्स में। अच्छा एक्स में थ्री। सम में क्या वैल्यू होगी? सम में थ्री होगी वाली। मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस नम या आई एन टी एक्स करेंगे तो सम की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी सिक्स। वेरी गुड। सम में सिक्स होगा ना। नेक्स्ट इटरेशन में एक्स में क्या होगा? फोर। सम में क्या होगा? टेन। टेन। नेक्स्ट इटरेशन में फोर में आएंगे, अब एक्स में क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेगा ऑब्जेक्ट्स नाम का जो लिस्ट थी वो फिनिश हो चुकी है, अब उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो अगला फॉर का लूप नहीं चलेगा। जब अगला फॉर का लूप नहीं चलेगा तो हम फॉर से बाहर आ जाएंगे। फॉर से बाहर क्या लिखा हुआ है? प्रिंट सम। क्या प्रिंट होगा? सम में टेन प्रिंट हो जाएगा। टेन प्रिंट होगा। क्लियर है क्या? तो यस इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या रहेगा? केवल टेन। टेन। अब बताना मुझे, अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या रहेगा? सर अब मेरे ख्याल से वन थ्री सिक्स टेन सब आ जाएंगे। करेक्ट। फर्क पता पड़ गया? यस। फर्क पता तो है? मेरी प्रैक्टिस छूट गई। अगर वापस आपका कोई भी चीज़ इंडेंटेड है तो वो फॉर लूप के अंदर ही आ जाएगी, और अगर इंडेंटेशन के बाहर है तो वो फॉर में नहीं आएगी।
बात क्लियर है क्या इतनी? Yes, sir. चलो तो अब आगे चलते हैं। तो हमने डेटा साइंस के बारे में बात करी थी कि डेटा साइंस में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेटा आपके पास में वेरियस फॉर्म्स में आ सकता है। अपन ने कई सारे डेटा इनपुट के फॉर्म्स देखे थे, जिसमें से एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल। सीएसवी का फुल फॉर्म बताओ जल्दी। तो देखना पड़ेगा, भूल गया। गड़बड़ कर रहे हो थोड़ी सी। सर वो प्रैक्टिस शुरू वापस से करनी पड़ेगी। CSV इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, जिसमें वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड होती हैं। ठीक है। Yes, sir. ऐसे ही डेटा आपके पास में डेटाबेसेस से आ सकता है। तो यहाँ पर अपन ने 3 डेटाबेस के नाम ले रखे हैं, MySQL, SQL सर्वर और ओरेकल। ऐसी और कई सारी डेटाबेसेस होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। और हमने देखा था कि XML भी एक डेटा इनपुट का सोर्स हो सकता है, और अलग अलग डेटा इनपुट के और दूसरे सोर्स हो सकते हैं, जैसे आपने PPT स्लाइड्स भेज दी, इमेजेस भेज दी या वीडियोस भेज दी। ठीक है। और लास्ट सोर्स ऑफ यूज़र इनपुट है, और लास्ट सोर्स ऑफ डेटा है यूज़र इनपुट, यानी यूज़र से इनपुट लेना। याद आ गया क्या? इसीलिए रिवीजन क्लास रखी थी ताकि सारी चीज़ रिफ्रेश हो जाए। Yes, sir. चलो तो आगे चलते हैं। फाइल पे अपन ऑपरेशंस कर सकते हैं पाइथन से। फाइल ऑपरेशंस Yes, याद sir. है? हम्म। आपके इस वाले की वो है क्या, रिकॉर्डिंग? सॉरी। नहीं, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये वाली भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है। हाँ थोड़ी हार्ड है। ठीक है। तो फाइल ओपनिंग ऑपरेशंस याद है? सर हमने रीड, हमने रीड हाँ, अपनी वेरी गुड वेरी गुड। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमने ओपन यूज़ किया था। और इसको यूज़ कैसे करते हैं? ओपन और फाइल का पाथ। अगर आपका सेम फोल्डर के अंदर है तो सीधे फाइल का नेम दे देंगे, और अगर किसी और फोल्डर में है तो फाइल का पाथ दे देंगे पूरा। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने इसके एक्सेस मोड्स पढ़े थे। ओपन आपसे एक्सेस मोड भी लेता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है सिंटैक्स में बताओ? व्हाट डज ऑप्शनल। दिस? वेरी गुड देवांश। ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब ये देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप दोगे तो कॉमा सेपरेट करके आप ये दे दोगे। सिंटैक्स में जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे तो वो ऑप्शनल है। बताओ सर कॉमा ब्रैकेट के बाद क्यों? कहाँ पर है? ब्रैकेट से पहले है कॉमा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने एक्सेस मोड यूज़ किया है तो आपको कॉमा लगा के यूज़ करना पड़ेगा, मतलब सेकंड पैरामीटर है इसलिए कॉमा दिया है। अगर आपने एक्सेस मोड यूज़ किया तो कॉमा लगा के करना। अगर एक्सेस मोड नहीं यूज़ किया तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपने बफरिंग यूज़ करी तो कॉमा लगा के करिएगा, वरना मत करिए। ठीक है। तो यहाँ पर है ये एक्सेस मोड। अब अपने एक्सेस मोड्स पढ़े थे। एक्सेस मोड्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी से एक्सप्लेन कर दो ये सारे एक्सेस Yes, मोड। sir. आर स्टैंड्स फॉर रीड, Yes, sir. एक्स स्टैंड्स फॉर क्रिएट, यानी फाइल क्रिएट करनी है तो एक्स मोड यूज़ करेंगे। फाइल में आपको लिखने के लिए फाइल ओपन करनी है, यानी उसमें कोई डेटा आपको लिखना है तो डब्ल्यू यूज़ करेंगे। अपेंड किस लिए यूज़ करते हैं जल्दी से बता दो। सर क्रिएट और उसमें अगर आपको कुछ लिखना हो तो। फाइल पहले से बनी हुई है और उस बनी हुई फाइल में आपको कुछ एडिशनल लिखना है तो अपेंड करेंगे। अपेंड की एक आपने खास मेरे में बात है तो कि एक बार मैं बता देता हूँ। अपेंड की एक खास बात है, अगर फाइल बनी हुई नहीं है तो ये फाइल बना भी देता है। हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे हो? सर यही बोल रहा था कि मेरे में क्रिएट एंड कैन राइट हाँ 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 अटेंड। ठीक है। तो अपेंड में 3 चीज़ हो गई। पहला, पहले फाइल बनी हुई है उसमें कुछ डेटा है तो उसके बाद से लिखना चालू कर देगा। दूसरा, ये राइट के लिए यूज़ हो रहा है, राइट आफ्टर व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिटन। और ये अगर फाइल बनी हुई नहीं है तो फाइल बना भी देगा। साथ में हम 2 मोड्स एडिशनल यूज़ करते हैं, वो है टी फॉर टेक्स्ट, बी फॉर बाइनरी। तो अगर आपको इमेज वगैरह की फाइल लिखनी है तो आप बाइनरी मोड यूज़ करोगे, टेक्स्ट की फाइल लिखनी है तो टेक्स्ट मोड यूज़ करोगे। और ऑब्वियसली हमने यूज़ करने का सिंटैक्स पहले ही देख लिया था, तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल्स है।
आपने ये वाली फाइल बताओ किस लिए यूज ओपन हो रही है? सर तो मैंने तो क्रिएट प्लस राइटिंग के लिए ये या प्रोजेक्ट अपेंड के लिए यूज हो रही है। ए फॉर अपेंड। अपेंड मतलब फाइल इज ऑलरेडी क्रिएटेड एंड यू वांट टू राइट आफ्टर दैट टेक्स्ट, है बट ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रिएट करनी है। एग्जैक्टली तो अगर पहले से फाइल बनी हुई नहीं होगी तो क्रिएट भी कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बताओ, व्हाट इज दिस एग्जांपल फॉर? सर ये रीड सर जो भी टेक्स्ट है उसको रीड करने के लिए हाँ, लेकिन टी भी लगा हुआ है तो टी का मतलब क्या है? टेक्स्ट। जो आप फाइल ओपन कर रहे हो वो एक टेक्स्ट फाइल है और हम उस फाइल को रीड के लिए ओपन कर रहे हैं। ठीक है, यस ऑलराइट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट टी ही होता है, इसलिए टी को आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फाइल होता है। ठीक है, यस ओके, आगे चलते हैं। फाइल क्लोज कैसे करेंगे? फाइल ऑब्जेक्ट प्लेस और जो भी है। ठीक है, एफ डॉट क्लोज, फाइल क्लोज हो जाती है। अब रीड की बात सर करें। हाँ बोलो। जैसे कि मैंने अपने इसमें अगर एक फाइल बनाई है जिसमें इमेज है, हम्म ठीक है, हम्म। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें क्या रखेंगे? हम इमेज भी ना डायनेमिकली प्रोग्राम से बना सकते हैं, लेकिन इमेज फाइल्स के लिए हमें बी यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन ने देखा था ना, बी। सर तो इसमें RAWX यूज नहीं होंगे? हाँ, RAWS, ये जो चार फ्लैग्स हैं ये चारों टी और बी के साथ में यूज होते हैं। यानी टी के साथ भी आप ये चारों यूज़ कर सकते हो और बी के साथ भी आप ये चारों यूज़ कर सकते हो, लेकिन तो टी टेक्स्ट फाइल के लिए और बी बाइनरी फाइल के लिए। तो अगर तो आपको मुझे इमेज फाइल खोलनी है रीड करने के लिए तो आप कैसे खोलोगे? आर और बी, RB है ना? समझ गए? और आपको इमेज फाइल क्रिएट करनी है तो कैसे खोलोगे? एक्स बी। X। अपेंड के लिए खोलनी है तो ए बी। आ गया समझ में? सर तो इसमें राइट का कोई मतलब ही नहीं है। राइट का क्यों नहीं है? डब्ल्यू बी। सर तो राइट का करोगे इसमें, क्या मतलब? उसमें लिखोगे क्या? हम्म? उस फाइल में लिखोगे क्या? इमेज। इमेज भी इमेज आप थोड़ा। डायनेमिकली, हाँ इमेज भी आप लिख सकते हो। इमेज के लिए आपको बाइनरी कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। बाइनरी कैरेक्टर्स नॉर्मल कैरेक्टर नहीं होते, यानी आप उसमें ए बी सी डी नहीं लिखोगे। इमेज अलग ढंग से लिखी जाती है, उसमें हेक्साडेसिमल और बाइनरी कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, उसको लिखने सर का तो तरीका दूसरा होता है, नॉर्मल ये हमको कैरेक्टर्स नहीं लिखते। ये हमको बाद में पता चलेगा कि कौन से। ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इमेज फाइल बनाएंगे नहीं, लेकिन हम इमेज फाइल रीड जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्लोजिंग द फाइल। क्लोज बहुत सिंपल है। रीडिंग और राइटिंग कैसे कर सकते हैं बताओ? रीडिंग और राइटिंग देखो, सर दोनों एक साथ कैसे करोगे? हाँ दोनों चीज़ अलग है, दोनों चीज़ सिंपल है ना। रीड करके आपने दे दिया 10, तो आप 10 कैरेक्टर्स रीड कर सकते हो। अगर आपने रीड लाइन दे दिया तो इसका मतलब पूरी की पूरी लाइन रीड कर लोगे। और अगर आपने रीड लाइन्स दे दिया इसका मतलब दो पूरी की तीन पूरी लाइन। फाइल ही रीड हो जाएगी। पूरी की पूरी फाइल ही रीड हो जाएगी। रीड ऑल लाइन्स, रीड लाइन्स का मतलब है रीड ऑल लाइन्स। ठीक है, और फाइल में अगर कुछ भी लिखना है तो आप लिखोगे एफ डॉट राइट से, और आप यहाँ पे जो भी दोगे वो लिख दिया जाएगा। अब ये देखो, अगर हमें इमेज फाइल लिखनी होगी तो यहाँ पर जो चीज़ दी जाएगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे आपको बाइनरी कैरेक्टर्स लिखने होंगे। बाइनरी कैरेक्टर्स दूसरे ढंग के हैं। 0 और 1 आपको याद है, एक बार हमने बाइनरी ऑपरेशंस किए थे। कैसा की आवाज कैसे कर रही? 0 और 1 बाइनरी ऑपरेशंस किए थे, एक बार याद है? हमने बाइनरी नंबर्स निकाले थे, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। वो ऑक्टाडेसिमल हेक्साडेसिमल। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट।
तो यहाँ पर हमें बाइनरी नंबर्स लिखने पड़ेंगे, है ना, बाइनरी डेटा लिखना पड़ेगा अगर हम इमेज फाइल लिख रहे हैं। तो टेक्स्ट फाइल के लिए नॉर्मल आपने स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। और क्लोज, जब आपने सारा ऑपरेशन कर लिया फाइल पे तो आप उसे क्लोज कर दोगे। ऑल राइट, आगे चलेंगे। डिलीट कैसे करेंगे? फाइल को डिलीट करने के लिए आपके पास में OS स्टैंडर्ड मॉड्यूल है। OS स्टैंडर्ड मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। OS स्टैंड फॉर, बताओ OS किस लिए स्टैंड करता है? OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल में एक पाथ मॉड्यूल है। पाथ मॉड्यूल से आप ये पता कर सकते हो, पाथ मॉड्यूल में एक एग्जिस्ट मेथड है, उससे आप ये पता कर सकते हो इस नाम की फाइल पहले से बनी हुई है क्या। सो यूजिंग द os.path.exist आप पता कर सकते हो कि demofile.txt नाम की फाइल बनी हुई है क्या। और अगर बनी हुई है और उसको आपको डिलीट करनी है तो आप डायरेक्टली मेथड यूज़ कर सकते हो os.remove और फाइल का नाम। तो ये आपकी बनी हुई फाइल को डिलीट कर देगा, ठीक है क्या। तो यहाँ पर हमने चेक किया ऐसी कोई फाइल है क्या, और ऐसी अगर फाइल है क्या तो हमने नेक्स्ट लाइन में उसे रिमूव कर दिया। क्वेश्चन पूछो। बोला था एक बार रुक जाओ, मतलब स्क्रीन मत चेंज करना, ये मैंने नोट डाउन किया स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन इज विजिबल, यू कैन नोट इट डाउन। OS स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, उसमें पाथ मॉड्यूल के अंदर एग्जिस्ट मेथड है। एग्जिस्ट os.path.exist से हम चेक कर सकते हैं इफ द फाइल एग्जिस्ट, वहाँ पर ऐसी इस नाम की कोई फाइल है क्या। और os.remove से हम उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। os.remove से हम उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने सीखा था हाउ टू डिफाइन अ न्यू फंक्शन। अपना खुद का फंक्शन पाइथन में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो अपना खुद का फंक्शन अगर डिफाइन करना होता है पाइथन में तो हम डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। उससे पहले हम पूछना चाहूँगा मैं तुमसे, व्हाट इज़ अ फंक्शन। आप उसको कमांड दे रहे हैं, तो उसको बोल रहे हो कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको यही बोलना पड़ेगा। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, देख के बताओ। व्हाट इज ए फंक्शन? अब बोला था फंक्शन, अच्छा हीरा, a function is a block of code which only runs when it is called. Function is a block of code which only runs when it is called. Function is a block of code which only runs when it is called. यानी फंक्शन एक कोड ब्लॉक है, यानी सेट ऑफ लाइंस ऑफ कोड है जो कि रन तभी होगा जब हम उसे कॉल करेंगे, ठीक है। और फंक्शन को डिफाइन किससे करते हैं? डेफ वर्ड से। डेफ कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन किया जाता है पाइथन में। डेफ के बाद में आप फंक्शन का नाम देते हो और पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स देते हो कि इनपुट कितने लेगा। जो स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर लिखते हो आप फंक्शन की बॉडी में लिखते हो, वो फंक्शन की बॉडी कहलाते हैं वो वाले स्टेटमेंट्स। और फंक्शन से आप कोई वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, उसके लिए आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करोगे। तो जो भी आप रिटर्न के बाद में दोगे वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, फंक्शन का आउटपुट मिल जाएगी। ऐसे कुछ फंक्शंस हम यूज़ कर चुके हैं। कौन कौन से यूज़ कर चुके हैं जल्दी बताओ। हम एक लिस्ट देख लेते हैं सामने, इसमें से देख के बताओ कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ कर चुके हैं।
dir फंक्शन हमने यूज़ किया है, फाइल हमने यूज़ किया है, फ्लोट हमने यूज़ किया है ना, इनपुट INT इनपुट यूज़ किया है, int यूज़ किया है, len हमने यूज़ लिस्ट किया है, लिस्ट यूज़ किया है, लिस्ट नहीं यूज़ किया आपने, लेकिन लिस्ट भी लिस्ट क्रिएट करने के काम में आता है। ओपन आपने यूज़ किया है ना। तो ये है, ये बिल्ट इन फंक्शंस है पाइथन में। दे आर लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन विच यू कैन यूज। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस का बस अपन सिंटैक्स देखें और यूज करें। आगे चलते हैं। मॉड्यूल्स, व्हाट इज ए मॉड्यूल? मॉड्यूल्स इन पाइथन, व्हाट इज ए मॉड्यूल? कोड लाइब्रेरी। कोड लाइब्रेरी। मॉड्यूल इज ए कोड लाइब्रेरी। कोड लाइब्रेरी का मतलब बहुत सारे फंक्शंस का एक कलेक्शन है। वो सारे फंक्शंस और उनकी फंक्शनैलिटी को आप यूज़ करना चाहो तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। कौन सा मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया बताओ जरा। अभी तक जो किया हमने, हो, अपन कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट कर चुके? वेरी गुड, वी हैव इंपोर्टेड मैथ मॉड्यूल। सो मैथ मॉड्यूल वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, इंपोर्ट मैथ। एक और मॉड्यूल हमने कर चुके हैं, बताओ कौन सा? हो, numpy यूज कर चुके हैं हम, इंपोर्ट numpy। ठीक है, numpy एरे बनाने के काम में हमने यूज किया है। सर आप ये यूट्यूब पे डालोगे, मतलब क्या चीज? इस पे डालोगे? हाँ, ये मैं आपको शेयर करूंगा। हाँ, ये रिवीजन क्लास आई विल शेयर विद यू। ओके, तो हमने numpy यूज़ किया हुआ है और हमने मैथ मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। हम बहुत ही जल्दी मैटप्लॉटलिब करके एक और मॉड्यूल होता है, उसे भी बहुत जल्दी यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि डेटा साइंस के लिए कुछ पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज हैं। उसमें से हमने एक लाइब्रेरी अभी तक डिस्कस कर ली है, numpy। और numpy लाइब्रेरी किस काम में आती है? इट इज़ यूज फॉर डेटा क्लीनिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब डेटा पे कोई ऑपरेशंस करने होते हैं। और भी तरीके की लाइब्रेरी है, जिसमें से पांडाज लाइब्रेरी आपको दिख रही है यहाँ पे। पांडाज लाइब्रेरी हम बहुत जल्दी यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे तो हम टेंसर फ्लो यूज़ करेंगे। और अभी डेटा को अच्छे से ग्राफ्स की फॉर्म में दिखाने के लिए हम मैटप्लॉटलिब यूज़ करेंगे। तो ये अलग अलग सेक्शंस ऑफ डेटा साइंस है, जिसमें इंक्लूडेड वी हैव डेटा क्लीनिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन, डेटा गैदरिंग, डेटा को देखना अच्छे से, विच इज़ कॉल्ड डेटा विजुअलाइजिंग और विजुअलाइजेशन, डेटा मॉडलिंग वेयर वी अरेंज द डेटा, और इफ़ वी हैव टू प्रोसेस द इमेज देन वी हैव इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज। ओके, सर ये सब नाम किसने दिए? ब्यूटीफुल सो नाम इनके क्रिएटर्स ने दिए, जिन्होंने इन लाइब्रेरीज को बनाया उन्होंने इसको नाम दिए। ठीक है, तो कल को आप भी अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हो पाइथन में और उसको अपना मनचाहा नाम दे सकते हो। तो कल हो सकता है हम देवांश नाम की लाइब्रेरी को भी देखें। लेट्स गो नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट numpy। और numpy में हमने बोला था कि numpy में वी विल क्रिएट एरेज। सो numpy इज बेसिकली यूज टू वर्क विद एरेज। numpy हमें काम आती है एरेज के साथ में वर्क करने पे। और numpy के एरेज पाइथन की लिस्ट के जैसे ही होते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स फास्टर होते हैं। और 50 टाइम्स फास्टर क्यों होते हैं बताओ ज़रा। because it is stored in systematic form. हाँ, बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ए ऑर्डर्ड फॉर्म एंड इट इज़ एलोकेटेड मेमोरी इन ए कंटिन्यूस फैशन। लिस्ट के अंदर मेमोरी इधर उधर एलोकेटेड होती है, जबकि एरे के अंदर सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेट होती है, एक के बाद अगला, अगले के बाद अगला। ठीक है, फिर अपन ने एरे की मल्टीपल टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने 0 डायमेंशन एरे, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन एरे देखे थे, और 4 डायमेंशन एरे का आपने एग्जाम्पल बनाया था, याद है क्या? Yes, sir. So multi-dimensional arrays we have seen 0 dimension, 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension.
these we have seen, and then you have also created 4-dimensional array. किया हुआ है कॉपी में, नोटबुक में है? सर नोटबुक में नहीं, फिर कहाँ पे बनाया था 4-डायमेंशन array? सर मैंने बनाया नहीं था। Then write down now. Write as a homework. You will create a 4-dimension array. Okay? Note it as an homework. You will create a 4-dimension array. और आप उसे WhatsApp में शेयर करना क्या बना 4-dimension array. ओके सर। ठीक है? डायमेंशन हमें ये बताता है कि ये एक सीधी सी लिस्ट है तो ये सिंगल डायमेंशन है। ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है तो इसमें 2 डायमेंशन है। इसमें पहला एलिमेंट है एक लिस्ट और दूसरा एलिमेंट भी एक लिस्ट है। 3-डायमेंशनल एरे एक्सप्लेन करो। इस 3-डायमेंशनल एरे में कितने एलिमेंट है बताओ? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस 3-डायमेंशनल एरे? 2। Very good Devansh. This 3-dimensional array has 2 elements. और फर्स्ट एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2. And each of the element is a list, right? Each of the element is a list by itself. ऐसे ही 4 डायमेंशन में क्या होगा? 3 लिस्ट में 3 एलिमेंट्स होंगे। नहीं, 3-डायमेंशनल एरे में पहला एलिमेंट एक लिस्ट होगा, फिर उसका एलिमेंट भी एक लिस्ट होगा, उसका एलिमेंट भी एक लिस्ट होगा, है ना? ऐसे होगा? ऐसे होगा, बिल्कुल। आप ये डायग्राम भूल गए थे? ये डायग्राम नहीं, हमने सर, बनाया था। डायग्राम। तो यहाँ पे कितनी लेवल जा रहे हैं हम? यहाँ पे हम 3 लेवल्स जा रहे हैं। फर्स्ट लेवल ब्लू स्क्वायर्स, सेकंड लेवल स्काई ब्लू स्क्वायर्स, थर्ड लेवल ऑरेंज स्क्वायर्स। 4-डायमेंशनल एरे के अंदर आप 4th लेवल पे जाओगे। याद है ये हमने किया था? यस सर, याद है। ये याद है ना? तो 4 डायमेंशन के अंदर आप 4th लेवल पे जाओगे। टुडे डेफिनेटली क्रिएट ए 4-डायमेंशनल एरे। ओके? ओके सर। All right. With this, the last thing that we have done was slicing of the array. और slicing of the array में कोलन ऑपरेटर यूज करते हैं। कोलन ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है? कोलन ऑपरेटर का दूसरा नाम स्लाइसिंग ऑपरेटर, बिकॉज इट इज यूज फॉर स्लाइसिंग, है ना? स्लाइसिंग का सिंटेक्स पता ही है, स्टार्ट इंडेक्स और स्टॉप बिफोर इंडेक्स। याद है ना? स्टॉप बिफोर मतलब यस सर। अगर इंडेक्स 6 तक आपको देना है तो आप 5 तक के एलिमेंट्स आएंगे। अगर आपने इंडेक्स 6 यहाँ पे दिया तो आपके पास में 5 तक के एलिमेंट्स आएंगे, -1 तक के एलिमेंट्स आपको आएंगे। तो स्लाइसिंग का सिंटेक्स वेरी सिंपल है। स्टार्ट इंडेक्स दे दो, कोलन ऑपरेटर लगा दो, स्टॉप बिफोर इंडेक्स दे दो और स्टेप दे दो। स्टेप बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 1। और अगर आपको एक छोड़ के एक एलिमेंट्स लेने हैं तो स्टेप कितना दे दोगे? 2। और दो छोड़ के एलिमेंट्स लेने हैं तो स्टेप कितना दे दोगे? 3। और अगर आपको, अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना, लिस्ट के फर्स्ट से लेकर 3rd एलिमेंट तक स्लाइस करना है तो क्या इंडेक्सेस दोगे आप यहाँ पे? लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट से लेकर 3rd एलिमेंट तक स्लाइस करना है, क्या? 1:4। फिर से सोचो, फर्स्ट एलिमेंट से लेकर 3rd एलिमेंट तक एक्सट्रैक्ट करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 एलिमेंट आने चाहिए, क्या दोगे? यस सर, 1:4। फिर से सोचो, स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा? स्टार्ट इंडेक्स तो 1 होगा। पहले एलिमेंट का इंडेक्स कितना होता है? इतना बढ़िया तो गेम खिलाया था आर्चर और थीफ का। नहीं सर, आपने बोला ना कि 1, 2 और 3 एलिमेंट्स। हाँ, तो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट देना है। हाँ, वो मैं कंफ्यूज हो गया था। 0:3। 0:3। हाँ सर, 0:3।
0:3 और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है, इसलिए वी विल गिव 0:3 तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट आ जाएंगे. ठीक है. So this is called slicing of the array, and we can use slicing with slicing for the array. All right, आज की क्लास इतनी